take me before you take my parents. You know, और रोज रात को मेरी prayer यही रहती थी. So whether it was alcohol, whether it was cigarettes, whether it was partying too hard and partying too much, whether it was drugs, anything that was substance abuse was something that didn't work for me. The difference between a human being and Salman Khan is he's being human. He's not a human being. Human being तो हम सब है. He's being human. He teaches you what being human is all about. नहीं तो सुनील शेट्टी में था कि एक्टर बन ही नहीं पाता मैं. एक्टिंग तो आती नहीं थी. हिंदी खराब थी. I don't ever have anybody with me. No entourage. Nothing. Never. शूटिंग पे है तो दादा लोग हैं और दादा लोग भी है तो 35 साल से मेरे साथ है और 100 साल के तो खुद हो चुके हो. सॉरी झूठ बोल रहा हूँ. आप बोलो इसको रिश्वत दो. मैं नहीं देता. मैं क्यों? वैसा होना भी चाहिए. क्यों दूं मैं? और क्या उखाड़ लेगा कोई? जो गलत है अपने से क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm with someone who has a career for over 3 decades, over 100 films. I think it's such an honor कि मैं आज उनके साथ बैठी हूँ because आज हम उनके करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, 102 के बारे में बात करने वाले हैं. Joining me in a conversation is none other than the heartthrob Sunil Shetty. Thank you. So nice to have you. Aina, yeah. Aina, yeah. Aina. You know a lot about AI also? I'm trying to. I speak to ChatGPT. I mean, that's all. You better know because your name has it. Yeah, absolutely. But so I'd like to start off by asking you, what a journey you've had in your life. 30 years, not easy. But you know, the most inspiring thing जो आपने हमेशा अपने पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ में कहा है is आपने अपने पापा से कितना सीखा है. उनकी जर्नी आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही है because he started at the age of 9 and to sort of you know imbibe something from him that has made you a successful man. वो एक कौन सी चीज़ होगी? I think consistency with what he did, everything, belief that he had in himself, and the honesty, the respect for other people, and the never say never, never say die approach to life. You know, when you're a 9-year-old and you're struggling to make a living for your family, I think that says a hell of a lot. You know, and he was an achiever. He was uneducated, but life was his education. Life was his teacher. Life was his guru. I think all that keeps coming back to my mind time and again, and ever since I've lost him, even more so. And I think that's what keeps me going and just works for me. मैंगलोर की कुछ ऐसी यादें हैं आज भी आपके लिए? हर वो चीज़ मैंगलोर की. द बैकवाटर्स, पतली गलियाँ, वो फेस्टिवल्स, देवी माँ की पूजा, हमारे नाग की पूजा, हमारे भूत प्रेतों की पूजा, वो मॉनसून्स जहाँ फील्ड्स नहीं रहते थे, दरिया बन जाता था, वो बोट्स का आना जाना, वो बैकवाटर्स में मेरी फिशिंग, नाइट फिशिंग, बुलक रेसेस, रूस्टर फाइट्स. आई थिंक वो सारी चीज़ें, वो खेत, everything about Mangalore was magical, and it still is. मैं जब मैंगलोर गई थी तब I had that ice cream गड़बड़. गड़बड़ आइसक्रीम ऑफ कोर्स. खाना भी वैसे ही, you know, आप खाने की भी बात करो तो मैंगलोर की कमाल की. बट हाउ कम यू वेंट? आप कैसे गए थे मैंगलोर? मेरे पापा ने कुछ समय अपने ज़िंदगी में मैंगलोर में बिताया था. कहाँ पर? मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं होगा, पर वो अक्सर मैंगलोर की बातें करते हैं. ओह सो स्वीट. तो उन्होंने कहा जैसे एक भेल भी होता है मैंगलोर का. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी.
कुरमुर समथिंग लाइक दैट, एंड द गड़बड़ आइसक्रीम तो उन्हें मुझे भी खिलाया था, एंड आई फील लाइक it was it's a different world. It's a different world altogether. It's a simple world. It's a simple world. Yeah. तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आप हमेशा कहते हो कि मैंने अल्कोहल को कभी टच नहीं किया है, I've always been this discipline. वो डिसिप्लिन कहाँ से आई है? I think martial arts, sport. Martial arts, I learned under Sensei Pervez Mistry, जो एक पुरानी form of martial arts थी, ओकिनावा गोजो-री. वहाँ सिखाया गया कि स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ तब होती है जब आप बहुत सारी चीज़ें जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है आप उससे दूर रह सकते हो. So whether it was alcohol, whether it was cigarettes, whether it was partying too hard and partying too much, whether it was drugs, anything that was substance abuse was something that didn't work for me. Other than that, स्पोर्ट्स कैप्टन था, ऑब्सेसिव स्पोर्ट्समैन था, तो जानता था कि आई नीडेड टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू बी सक्सेसफुल इन स्पोर्ट. उन चीज़ों की वजह से एंड आई थिंक मार्शल आर्ट्स वाज व्हाट डिड इट फॉर मी, एंड देन स्पोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट ओनली, सो दैट्स व्हाई. जब आप आपके यूथ में हो, इतना फेम देख रहे हो, you're seeing an industry जहाँ पे चीज़ें इतनी एक्सेसिबल है, तभी भी कभी टेम्प्ट नहीं हुआ कि ट्राई कर लेते, थोड़ा पार्टी कर लेते? कभी नहीं. फ्रेम ऑफ माइंड वैसा था. गुरुओं के साथ सीखा हूँ मैंने, टीचरों से नहीं सीखा हूँ. तो गुरुओं से जब सीखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हो. तो वही इस भारत की खूबी है कि जब आप गुरु से कुछ सीखते हो, अपने कल्चर से कुछ लेते हो, अपने रूट से कुछ लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भुला नहीं पाते, और बहुत सारी चीज़ें जो आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हो. और जब मेरे जहन में ही नहीं आया, और तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैंने वो चीज़ ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं था, और मेरे लिए जो अच्छा नहीं है मैं बिल्कुल उसमें मानता ही नहीं हूँ. आज बहुत सारी एड्स है जो मैं कर सकता हूँ जिसमें पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन मुझे मायने ही नहीं रखता वो. मैं अल्कोहल हो, मैं सिगरेट हो, या टबैको हो, या पान पराग हो, या जो भी हो, मैं कभी एंडोर्स करूँगा ही नहीं. तो लोग मेरे पास आते ही नहीं, और लोग जब नहीं आते तो मुझे टेम्पटेशन भी नहीं होती, कभी होगी भी नहीं. लेकिन doesn't bother me. Doesn't bother. No, that's a great mindset. I think it's a very strong mindset to have. But फिल्मों में आने की वजह कुछ थी कि पहले से पैशन था? नहीं, बिल्कुल नहीं. फिल्मों के बारे में सोचा भी नहीं था. मार्शल आर्टिस्ट था. किसी ने मुझे स्टेज पे देखा, लगा कि एक्शन अच्छा करेगा, ऑफर आई, मैंने कोशिश की. पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, वन लाइफ टू लिव, गिव इट योर बेस्ट. ज़िंदगी एक है तो कोशिश करनी चाहिए. कोशिश की मैंने, सक्सेस मिला, लेकिन एज एन एक्टर रिटन ऑफ था. तो फिर मेहनत करके कहीं ना कहीं अपने लिए, खुद के लिए मुकाम बना ली मैंने. आज 35 साल हो गए इंडस्ट्री में. शायद एंट्री हुई थी 1988-89 में, रिलीज़ हुई पहली फिल्म 92 में. तो आई थिंक 35-36 ईयर्स इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही किया होगा. नहीं, बिल्कुल. पर आपकी शुरुआत में काफ़ी पिक्चर शेल्फ भी हो गए थे जी. तभी अपने आप को वो हौसला देना कि गोइंग. मुझे मौका मिला था तो मैं उसी के हाई पे था. तो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग कभी आई नहीं कि मुझे ये हुआ है. आज जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ हाँ यार, बहुत बड़ा झटका था. लेकिन आई थिंक इतनी कॉन्फिडेंस थी मेरे में, और क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन था, हार और जीत में मैं सीखता ही था. हर रोज़ हारना था, हर रोज़ जीतना था, गारंटी तो कुछ थी नहीं. मार्शल आर्टिस्ट था तो फ्रेम ऑफ माइंड सही थी, मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था मैं, पेशेंट था, ब्रीदिंग पे अपनी कंट्रोल थी. तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल पे भी, तभी एंग्जाइटी तो होती नहीं था. तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल था. और क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक्शन में अबाव एवरेज हूँ, बॉडी अच्छी है, अबाव एवरेज बॉडी है, तो टिका रहूँगा, और कहीं ना कहीं डेथ डिफाइंग स्टंट्स करके टिका रहा. बट बहुत रिसेंटली मैं अली फजल के साथ एक पॉडकास्ट करी थी, एंड ही इज़ ऑल्सो बिन अ स्पोर्ट्स पर्सन इन हिज लाइफ फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. और उन्होंने कहा था स्पोर्ट्स में एक ऐसा डिसिप्लिन होता है कि आप जितना गिरोगे उतना ऊपर आओगे, और ये एक लाइफ लेसन है जो सिर्फ स्पोर्ट्स. एब्सोल्युटली. इसीलिए मैं हारना कहता हूँ. गिरने का मतलब हारना ही है, और हारना, जब आप हारना सीखते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी ज़िंदगी में. और जब अर्ली आप ये सीखते हो
तो नथिंग फैजल्स यू, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से। आपको लगता है हाँ यार ये एक पार्ट एंड पार्सल, अगले में मैं बेटर करूँगा, ज़्यादा बेटर ट्रेन करूँगा, बेटर फोकस करूँगा तो आगे बढ़ूँगा। और डेली यही चीज़ लगातार करता रहूँगा तो फेल कभी होऊंगा ही नहीं। तो इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंसी, इट्स ऑलवेज डिसिप्लिन, इट्स ऑलवेज कॉन्फिडेंस जो बहुत जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे मुश्किल दौर कौन सा था आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में? आई थिंक मुश्किल नहीं कहूँगा, लेकिन एक टफ दौर था जब पिताजी बीमार थे। यू नो कहीं ना कहीं करियर भी सही नहीं जा रहा था और पिताजी भी बीमार थे, तो करियर को संभालना इम्पॉर्टेंट था ही नहीं और पिताजी के साथ रहना इम्पॉर्टेंट था। तो डेली जब पिताजी को धीरे धीरे डिटीरियरेट होते देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एंड आएगा ही आएगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए ही नहीं हर बच्चे के लिए। माँ बाप का खोना बहुत बहुत बड़ा दुख होता है। Can't even imagine. Exactly. Yeah. And you know ब्यूटी यही है कि मेरी ज़िंदगी में बचपन से मैं प्रे करता आ रहा हूँ और मैंने हमेशा कहा, आई हैड थॉट टू माई सेल्फ कि गॉड टेक मी बिफोर यू टेक माई पेरेंट्स। यू नो और रोज़ रात को मेरी प्रेयर यही रहती थी। एंड आई वॉज अ वेरी इमोशनल चाइल्ड, इवन इफ माई आंट एंड ऑल अमेरिका से आए और वो लोग 4 दिन बाद उनका जाना था तो मैं उदास रहता था कि यू नो आंट एंड ऑल विल कम, नाउ दे विल कम आफ्टर 1 year। तो मुझे वो इनसिक्योरिटी बहुत थी। तो इट वाज अ टफ टाइम। आई थिंक एज अ पर्सन आप काफ़ी अटैच्ड हो अपने लव्ड वंस से। एब्सोल्युटली 100%। पर आई थिंक उस दौरान जब ये ट्रांजिशन था, आई थिंक आपने इतना कुछ अपने ऊपर भी ले लिया था, आपके डैड ने जितना क्रिएट किया था। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक कि आपने वो मल्टीटास्किंग को एस कर लिया अपनी ज़िंदगी में? आई थिंक मल्टीटास्किंग पिताजी की वजह से पहले से ही सीख चुका था मैं, क्योंकि रेस्टोरेंट चला रहा था, मार्शल आर्ट्स में क्लासेस भी ले रहा था अपने दोस्त अनिल लुंड के साथ, अपनी क्लोथिंग की बिजनेस भी चला रहा था, कॉलेज भी जा रहा था। तो मल्टीटास्किंग मैं पहले से करता आ रहा हूँ और रेस्टोरेंट बिजनेस सिखा देता है आपको मल्टीटास्क करना। आपको मेहनती बनाता है, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट दिला देता है, आपको किसी काम से शर्म नहीं आता, टेबल साफ़ करना हो या किसी के लिए दरवाज़ा खोलना हो या किसी भी चीज़ के लिए। तो इट प्रिपेयर्ड मी, इट मेड मी अ मैन, यू नो दैट आई बिलीव आई एम। इज़ इट ट्रू? कहीं ना कहीं एक कहानी है जहाँ पे जब सलमान खान नहीं थे तब उनको आपकी दुकान में आपके कपड़े अच्छे लगे थे, ही लाइक्स, और आपने ऐसे ही दे दिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सलमान खान बोल रहा है इसलिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैसा वो इतना बड़ा जेस्चर नहीं था। इट वॉज अ स्वीट लिटिल जेस्चर, लेकिन क्योंकि सलमान ऐसा इंसान है एंड ही रिलिव्स हर वो जो बात उसके ज़िंदगी में और उसके ऊपर गुजरी है वो उसे दोहराता है और लोगों को अप्रिशिएट करता है, ये बहुत बड़ा लगता है। वैसे तो सलमान ने हज़ारों लोगों को वैसे हेल्प किया हुआ है, तो बड़प्पन है उनका। नहीं, पर आपने उनको हेल्प किया। आई नो, लेकिन बड़प्पन है उनका कि वो बोलते भी है। राइट। यू नो हु रिमेंबर्स ऑल दीज लिटिल थिंग्स। कितने सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं Salman mentions it. That talks about Salman Khan. I always say the difference between a human being and Salman Khan is he's being human. He's not a human being. Human being तो हम सब है. He's being human. He teaches you what being human is all about. तो जो उनका brand है, it works perfectly for him. Yeah. But you've also said that you've helped people so much in their life. आपने कहा कि मैंने पैसे भी दिए लोगों को, आपने नहीं कहा, बट पीपल हैव सेड इट फॉर यू। बट आई फील कि आज के जनरेशन में जहाँ और इन लाइफ जब हम देखते हैं कि इतने चीज़ें होती है, वो भरोसा किसी पे रखना, पैसे दे देना, वो दिल इतना बड़ा रखना, आई डोंट थिंक इट कम्स वेरी इजीली। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड आपको कुछ और बोल रहा है ना, आपके एल्गोरिथम आपको कुछ और बोल रही है। एल्गोरिथम आप भरोसे पे देख लीजिए, 10 वीडियो देख लीजिए जहाँ एक आदमी दूसरे की मदद करता है, आपको 1000 ऐसे वीडियो दिखाई देंगे, फिर आपकी सोच भी वैसे ही बनती है।
जब आप नेगेटिव चीज़ों पे भी ध्यान देते हो और दिन भर इसी पे लगे रहते हो, तो ये आपकी दुनिया चलाती है, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यू नो, एक गुरु के बदले में हमने इसको अपना लिया है, तो इससे दूर भागना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के पेपर पढ़िए, अपना फैमिली के साथ टाइम बिताइए, इसको दूर रखिए। ये आपको अपने फैमिली से भी दूर रखता है, बिकॉज मिनट यू स्टार्ट गोइंग इनटू इट, माँ बैठी है सामने, आप भूल रहे हो, बहन बैठी है, आप भूल रहे हो। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है, ये फ़ोन। Do you tell this to Athiya and Ahan as well? 100% I tell this to Athiya and Ahan all the time, and we spend a lot of time together at home. Without gadgets? Even if the gadget is at home, we spend a lot of time together. Wow. So it's not 1 hour or 2 hours. हम 6 बजे बैठे हैं तो रात को 10:30 11 बजे तक उसी हॉल में बैठे रहते हैं और कुछ भी बातें चलती रहती है. That is one thing that I credit my children for also, कि वो बिलीव करते हैं कि माँ बाप के टाइम के साथ बैठना भी is a good thing. जो मेरे सन इन लॉ में भी ये बात है, you know. तो we are at home. 6 बजे के बाद आप कभी भी फ़ोन कीजिए और वीडियो कॉल कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे इर्द गिर्द ही है. एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट वेल्थ. तो किसी के पास प्लेन होगा, प्राइवेट जेट होगा और ये होगा, मेरी ताकत ये है क्वालिटी टाइम. एब्सोल्यूट. मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, माई ग्रैंड डॉटर, माई मदर, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, माई सिस्टर्स. एब्सोल्युटली. आई फील आपकी जो लव स्टोरी भी है, 9 साल डेट करना, जब आप अपनी करियर की पीक पर हो तभी शादी करना. व्हेन आई गॉट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई एम लाइक, वो सिक्योरिटी उस एज पर कि मैं कर लूँगा शादी, चलेगा अगर मेरे फैंस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि तब मेंटालिटी वैसी थी. अब इट्स बिकम बेटर, बट वेयर डिड दैट थिंग कम फ्रॉम टू नॉट फॉलो द स्टेरियोटाइप एंड टू गो विथ व्हाट द हार्ट सेज? क्योंकि स्टेरियोटाइप फैमिली थी नहीं. आई वाज नेवर एम्बैरेस्ड कि मेरे फादर वेटर थे और छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते थे और क्लीनिंग बॉय थे या डिश वॉशर थे. गर्व था मुझे इस बात का, क्योंकि मेहनत किया है उन्होंने और उन्होंने मुझे यही सिखाया. तो मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है. आज भी आप मुझे बोलो कि एयरपोर्ट लुक के लिए ये सूट पहनना है, मैं नहीं पहनूंगा. मैं जो कंफर्टेबल हूँ वही पहनूंगा, जो सिचुएशन के हिसाब से ही करूँगा. आई डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स, आई डू नॉट फॉलो एनीथिंग. आई फॉलो व्हाट आई बिलीव इन. मुझे सलमान खान की शर्ट अच्छी लगी वो पहन लूँगा, मेरे को जैकी श्रॉफ का शर्ट अच्छा लगा. जो मेरे हीरोज़ हैं उनको मैं फॉलो करूँगा. ट्रेंड मुझे कुछ नहीं बता सकता. एंड आई हैव बीन दैट वे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई हैव बीन वोकल अबाउट, जो भी मुझे बोलना है मैंने दिल से बोला हुआ है. मैं सोचता नहीं हूँ 10 बार, और वही मैं हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एम नोन. ऐसी कुछ खासियत है तब के रिलेशनशिप्स के बारे में जो आज के रिलेशनशिप्स में शायद मिसिंग है? ऑफ कोर्स. एक दूसरे के लिए खड़ा होना, एक दूसरे की पीठ के पीछे उनकी तारीफ करना, एक दूसरे में बिलीव करना कि अगर कुछ गलत भी होए, नहीं वो गलत कर ही नहीं सकता. जैसे एक माँ बोलती है या पिता बोलते हैं कि आपके बेटे ने ये किया, हो ही नहीं सकता. यू नो, वो फेथ ही है जो बच्चों को ऑनेस्ट भी बना देता है कि मेरा बेटा झूठ बोलेगा ही नहीं. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार माँ बाप को इतना भरोसा हम पे और हम क्या कर रहे हैं. योर ओल कॉन्शियस स्टार्ट्स गेटिंग टू यू. एंड आई थिंक वो ब्यूटी है भरोसे का, वो ब्यूटी है दोस्ती का, वो ब्यूटी है रिलेशनशिप का, फेथ. एंड इसलिए हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना, कि पता है हमको कि वो देंगे ही देंगे. हाँ, खुश रहते तो उन्हें भूल भी जाते हैं हम लोग, लेकिन दुख के वक्त पे हम जब जाते हैं उनके ही गिव्स यू. एब्सोल्युटली. नो, बट द होल वर्ल्ड इज़ क्रेजी आपके फिटनेस के बारे में, आपके बॉडी के ऊपर. आई वांट टू अंडरस्टैंड, माना कितना इम्प्रेस होती है इस चीज़ पर? बहुत, और इसलिए वो भी उतनी ही फिट है. शी इज़ ऑल्सो कॉन्शियस कि एक बहुत फिट हस्बैंड है, और इसीलिए उसका फिट रहना ज़रूरी है. मैं फिट रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस थे. जिम नहीं जाते थे, लेकिन 10 किलोमीटर चलना, सही खाना, सही वक्त पे सोना, अच्छी बातें बोलना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, छुट्टियां लेना, मैंगलोर लेके जाना, मंदिरों में लेके जाना, सही जगहों पे लेके जाना, वो भी एक लेवल की फिटनेस ही है ना. आज तो मेंटल फिटनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को. तो ये सब भी मेरे फिटनेस का एक हिस्सा है, जो सुनील शेट्टी को सुनील शेट्टी बनाता है. यू नो, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो जिम जाता हूँ और वही मेरी फिटनेस है. वो जिम को मैं घर लेकर जाता हूँ, यानी जब खाता हूँ तो जिम वाले जैसे खाता हूँ.
जब चलता हूँ तो जिम की सोच लेकर चलता हूँ। कुछ लोग हैं जो सिर्फ 1 घंटा जिम में करते हुए रात को दारू चाहिए, फिर खाने पे ये नहीं है, गालियाँ देते रहो दिन भर, झगड़ा होते रहते हैं दिन भर। मैं अपने जिम को अपने साथ अपने पूरे दिन में घुमाता हूँ। मेरी दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे। 5:30 बजे सुबह जब तक जिम नहीं जाऊँगा वो जिम मेरे साथ चलता है। दैट इज मेरे लिए वो फिटनेस है, वो मायने रखता है। No, it's so admirable the way you worship your body. Because क्योंकि उसी ने मुझे सब कुछ दिया, नहीं तो सुनील शेट्टी में था कि एक्टर बन ही नहीं पाता मैं। एक्टिंग तो आती नहीं थी, हिंदी खराब थी, मैंगलोरियन हूँ, हिंदी उतनी ही बोल पाता हूँ जितनी मैंने सीखी है, उससे अच्छा मराठी बोल लेता हूँ मैं। तो हुआ ऐसा है कि इसी ने मुझे सब कुछ दिया, और अगर इसी को मैं छोड़ दूं, मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे और जिम, यही साथी है मेरे। जिम को कभी छोड़ ही नहीं सकता मैं। बहुत एक आयरॉनिक बात है, क्योंकि जब आपकी शुरुआत हुई थी तब लोग आपको पसंद करते थे, पर कुछ क्रिटिक्स ऐसे थे जो आपके हिंदी पे, आपके एक्टिंग पे काफ़ी उन्होंने पिक किया, और आज वही चीज़ें हैं आपकी फिटनेस पे जो लोग इतने पागल हो रहे। द न्यूअर जनरेशन लव्स यू फॉर द एग्जैक्ट थिंग्स दैट प्रीवियसली यू वर क्रिटिसाइज्ड। एब्सोल्युटली, और इसीलिए ये बात है, ये चीज़ मुझे कनेक्टेड रखता है बच्चों से। 15-16 साल फिटनेस की बात करें और वो लोग ऐसे करेंगे सर, यू नो। और एक 15-16 साल का जब बच्चा बोलता है और किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है, आपको लगता है यार कितना इम्पैक्ट करता हूँ मैं यार सही चीज़ें करने से, वो अच्छा लगने लगता है। और आप इंसान को जब कुछ अच्छा लगने लगता है वो उसी को फॉलो करता है। आप अच्छी चीज़ें ही खाते हो, आपको किसी चीज़ पसंद आए तो यू कंटिन्यू टू डू दैट। तो वो लाइकिंग ही और वो अप्रिशिएशन ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा मकसद एक ही है कि आप घर जाके पापा को बोलो कि पापा, द मैन इज 64 years old। वैसी बॉडी नहीं बनाओगे तो आप अपनी तबीयत का ख्याल तो रख सकते हो ना, और कोई एम नहीं है मेरा, यू नो। और मैं कुछ बेचता नहीं हूँ कि ये खरीदो और वो खरीदो और ये खरीदो। मैं बोल रहा हूँ ये घर में है, अपनी खाना हमारे घर में है, खाना मम्मी का है या बीवी के हाथ का है, कैसे खाना, कितना शक्कर खाना चाहिए, कितनी सॉल्ट होनी चाहिए, कितनी ऑयल होनी चाहिए, किस पोर्शन में हमें खाना चाहिए, किस वक्त पे खाना चाहिए, कितना पानी पीना है, तो घर में ही उसी की बात करता हूँ मैं। बाकी ना मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता हूँ, ना मैं ऐसे सप्लीमेंट्स लेता हूँ, कुछ नहीं। एक आध बार प्रोटीन ड्रिंक, वाटर, ये वो पी लूँगा, वो भी जब मन करे तब, वरना बिल्कुल नहीं। सो इट्स ओनली नेचुरल, इट्स माय फूड। अगर मैं आपको पूछूं 3 टिप्स जो अन्ना देंगे फिटनेस के लिए, तो वो टॉप 3 चीज़ें कौन से होंगी? पहली बात तो अपने आप को रिस्पेक्ट करो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरी बॉडी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मुझे सही रहनी चाहिए। सेकंड, डिसाइड कर लो कि मैं हर रोज़ जिम जाऊंगा, वर्कआउट हुए नहीं हुए मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊंगा। और तीसरी बात कि मैं खाना जो खाऊंगा वो सोच समझ कर खाऊंगा। ये 3 चीज़ें आप कर लो एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। नो चीट मील्स एवर? और कभी-कभी आप नहीं बहुत, आज मैंने कुछ मिठाइयाँ आई थी, हाँ। दारवार के कुछ पेड़े आए थे मेरे, आई थिंक 5 खा गया मैं। लेकिन मुझे पता है कि रात का खाने में खींच लूँगा या कहीं ना कहीं मैं बैलेंस कर लूँगा। मैथ है ये, 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4। तो अगर आप 3 + 2 करोगे 5 हो जाएगा, तो अगले दिन आपको 3 पे उतर आना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। तो इट इज़ सो सिंपल। इसको बनाया गया बेचने के लिए, इसे चढ़ाया गया, बच्चों को बोलते हैं कि ये प्रोटीन लो, इतना ये डालो, इतना वो, इट्स ऑल बुलशिट। आपके पैप्स के साथ कैसा रिश्ता है? हमने देखा है एयरपोर्ट पे, हम देखते हैं, फिर अथिया की शादी के वक्त हमने देखा था आप मिठाइयाँ बांट रहे थे, बट पैपराज़ी का जो कल्चर है उसके ऊपर आपकी राय क्या है? देखिए, अपना काम कर रहे हैं वो अच्छा भी है। कभी कभार पैपराज़ी जो है वो बिलीव करती है न्यूज़ कौन फर्स्ट डाले वो इम्पॉर्टेंट है, जो सही डाले वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कल्चर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा रिलेशनशिप अब हमेशा
बहुत अच्छा रहा है, एब्सोल्युटली ओपन रहा है। मैं कभी किसी को पैसे देकर मुझे यहाँ कवर करो वहाँ कवर करो मैंने आज तक नहीं कहा, और चैलेंज देता हूँ किसी को, अगर एक इंसान ने बोला कि सुनील शेट्टी एयरपोर्ट पे है या इधर है और उन्होंने पैप को बुलाया है, मैं कभी करता नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, किसी को कुछ सीख मिलती है या नॉलेज चाहिए या उनको पढ़ना है, तो मेरे बारे में लिखो। सो मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि मैं विजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं करता, मैं वैल्यू के लिए करता हूँ। मैं अपने फिटनेस को वैल्यू करता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करता हूँ, मैं अपने काम को वैल्यू करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करता हूँ, अपने देश को सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ और इसीलिए दिखाई देता हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। लाइफ कैसे फुल सर्कल आ गई है, बॉर्डर टू अब आहान कर रहा है। एब्सोल्यूट। आई फील, आई एम श्योर कितनी चर्चा भी हो रही है उसके बारे में, पर एक और आपने कहा भी था, लॉट ऑफ पीपल ट्राइड आल्सो फॉर दैट थिंग टू नॉट हैपन विद आहान, एब्सोल्युटली, डिस्पाइट बीइंग सुनील शेट्टी। या बट दैट डजंट मैटर, एवरीबॉडी डजंट थिंक इक्वल ना। तो कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हुई होगी जिस वजह से वो नाराज़ है मेरे से और निकालना चाहता है किसी और पे, लेकिन तकदीर आप बदल ही नहीं सकते। आहान इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ बॉर्डर, और बॉर्डर की वजह से ही आहान की इतनी अप्रिसिएशन हो रही है। बॉर्डर से ही आहान को वरुण जैसा और दिलजीत जैसे दोस्त मिले, यू नो, प्यार मिला। दोनों दिलजीत और वरुण को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते। What do you have to say अभी जो हम डेब्यू भी देख रहे हैं आहान और अनीत का वायरएफ से? Unbelievable. Unbelievable. And very, you know, there is no substitute to hard work कहते हैं ना. That is what Ahan's Pandey story is about. And the girl, small town, big dreams, and now big responsibilities, क्योंकि एक generation को उन्होंने मौका दिया है. Maybe this is the turning point of the industry, जहाँ producers को लगे कि नहीं यार youngsters को और मौका मिलना चाहिए. तो which is fantastic. And God bless them, and I only hope that that journey continues, inspiring a lot of other kids to take up cinema and acting, because it's a beautiful place to be. बट आप आहान के लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हो क्योंकि आपने इंडस्ट्री देखी है और बहुत नज़दीक से देखी है. जितनी ग्लैमरस हमें लगती है उतनी है नहीं. बहुत there's a lot of hard work, लेकिन कहीं भी आपको ज़िंदगी में सेट होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. शॉर्टकट्स तो है ही नहीं किसी भी फील्ड में. बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आहान इज़ गोइंग थ्रू हिज जर्नी. आहान की पहली फिल्म चली थी, पैंडेमिक था, 25% पे था, फिर भी फिल्म ने 35-40 करोड़ का बिजनेस किया था. फिर भी फिल्म ने 5-5.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो बड़ी है एक न्यू कमर के लिए, एट 25%. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, बॉर्डर 500 करोड़ करे, एंड सनी पा, वरुण, दिलजीत के साथ आहान की भी प्रशंसा हो. दैट्स द ओनली थिंग आई प्रेइंग. अच्छी फिल्में हैं आहान के पास, बहुत अच्छी फिल्में हैं. Not because he's my son, but he's got a personality. Yeah. He's got a great voice, and he is a very, very, very good student. I really liked that. Honestly, yeah. And he's a good student. Actor. He's a good student also. You know, he looks up to people. He respects people. I think he's got a lot many traits of my father. Really? Yeah. Wow. और अथिया किस पर गई है अगर मैं पूछूं? अथिया, I think मेरे पे गई है, from a point of view of personality and belief. Obsessed with her brother. Obsessed. अथिया को आहान की obsession है, and Ahan is also a lot like his mother. And my mother, my wife and my father were like father-daughter. Okay. They were so close. Like he loved her. Oof. Yeah. Oof. But that's such a good thing. Yeah. To have. Very, very healthy, very beautiful. And I think a lesson for me, when Ahan gets married and the partner comes into his life, if I can be 10% of what my father was to Mana, I think I'd be a great father-in-law.
But how are you to KL? KL's my son. He's my baby. And again, so much to learn from him. So much to learn from him. So much. But I feel God has been so kind also, क्योंकि आपको हमेशा स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट, अपने क्रिकेट में इतना प्यार, और फिर लिटरली जैसे आते और KL की स्टोरी भी हुई है. Absolutely. That's why I said, you know, God's been kind. बहुत लोग बोलते हैं यार पहले जैसे नहीं रहा फिल्म. ऐसे वो करियर तो एक ना एक दिन एंड होना ही था, एज आना ही था, फेलियर देखना ही था. लेकिन लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैं अपने आप को अगर देखूँ कि किस पोजीशन में हूँ और मेरे परिवार कैसे है, आई थिंक I'm blessed. I wouldn't say the luckiest, but I say I'm blessed. God's been very, very kind. Are you a better husband, a father, or a working professional? I think that you'll have to ask my producer, my wife, and my children. Ask them this question and collect all these answers and put it together. I think, you know, even from a producer's point of view or a co-artist's point of view, I think उनका बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नो कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, न कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो. यू नो प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने हमें वो दे दी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. मैं वर्चुअल लाइक्स में बिलीव नहीं करता, मैं एक्चुअल लाइक्स में बिलीव करता हूँ. अगर कोई मुझसे कहा किसी मेरे सेट में लोगों ने कहा कि यार अच्छा शॉट दिया आपने, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन द वर्चुअल वर्ल्ड. नो, आई थिंक आपकी रिश्ते में ही वो प्रूव होता है. इवन इन द इंडस्ट्री अक्षय कुमार के साथ आपका रिश्ता इतना अच्छा रहा है इतने सालों बाद. आज भी वो ब्रदरली बॉन्ड, यू हैड सेड कि रिमाइंड्स यू ऑफ अ कजिन. माय कजिन उल्लास, and that's the reason I think I'm very emotionally I feel attached to Akshay, because he keeps reminding me of my cousin, you know, and that those are something. क्या quality? I think the wiry, the structure, the look. Then when they were younger, you know, leaner, and I said this to Akshay the first day I met him. अब अक्षय से पूछ लेना, when I was shooting for वक्त हमारा first day कहीं थे हम लोग, and I said God यार, you remember the way his entire behavior and everything. Yeah, absolutely. Very excited now. Everything's good on हेरा फेरी. उस पर Yeah, बस यही कहूँगा कि I don't want to jinx it. With a good eye, not an evil eye. And I would, मैं बात करूँगा हेरा फेरी को रिलीज के दिन पे. हेरा फेरी के बारे में इतना बात करूँगा कि लोग पक जाएंगे. नहीं, आई डोंट थिंक हम मुझसे पकने वाले. पर आई डोंट नो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, पर आवारा पागल दीवाना का एक क्लिप है जहाँ पे आप अक्षय को पूछ रहे हो कि कौन सी बिल्डिंग बनाई तो वो इतनी वायरल आज भी जाती है. रील्स पे हम देखते हैं एंड इट नेवर गेट्स ओल्ड. नेवर गेट्स ओल्ड. आई मीन उस टाइम की फिल्में ही वैसे थी कि हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे. अभी एक्सेल शीट्स के लिए बनाते हैं, अभी प्रॉफिट और लॉस बैलेंस करने के लिए बनाते हैं. तो वो है जब तक हम फिल्मों के लिए और ऑडियंस के लिए नहीं बनाए, वो आज इसीलिए मैं YRF की बात करता हूँ और इसीलिए आदि चोपड़ा की बात करते हैं. वो बनाते हैं फिल्में मेकर की तरह जी. यू नो आज बॉक्स ऑफिस सक्सेस मेकिंग के वजह से आती है उनकी, और दैट्स द ब्यूटी. ऐसी कोई फिल्म है आपकी फिल्मोग्राफी में जिसको आपको लगता है कि प्यार मिलना चाहिए था पर ज़्यादा प्यार नहीं मिला? ये तेरा घर ये मेरा घर. ओके. माय एब्सोल्यूट फेवरेट फिल्म, और इट इज़ हेरा फेरी लेवल की फिल्म थी, लेकिन वो प्यार नहीं मिला. I have to watch it. Yeah, watch it. Yeah. And tell me what you think about it, and I'll guarantee you आप बोलोगी कि इतनी प्यारी फिल्म थी यार. Yeah. इतनी फायदा. आई थिंक टाइमिंग गलत, एक्शन हीरो तो लोगों को नहीं आ गया पसंद. सो आई डोंट नो. हंटर 2 करने की, हंटर एज अ फ्रेंचाइज करने की वजह क्या थी? टाइटल, you know, and hunt against evil, a hunt against people who've betrayed him, a hunt against someone who's taken away the most precious thing in his life, his daughter. Even Jackie sir, I feel like इतने अच्छे co-star है. मैंने सुपर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दादा के बहुत सारा काम आया है इस साल. बहुत. But Hunter will be his best because दादा is Jackie दादा. ये हर फ्रेम देख के आपको लगता है यार ये किस आदमी के साथ खड़ा हूँ मैं यार, क्यों खड़ा हूँ यार.
ये खा जाता है मेरे को, यू नो, ही गिव्स यू दैट काइंड ऑफ उनकी ऑरा ऐसी है और पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको वो फीलिंग देता है मैं यार कौन हूँ. देयर इज सो मच स्वैग, ही इज टू गुड, इज टू गुड. आई थिंक मैंने उनको रिसेंटली एक सवाल पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स यू गोइंग ऑन सेट आज भी, तो उनका जवाब था काय का मोटिवेशन. मतलब मुझे ये करने को मिल रहा है. यू डू योर वर्क, यू गो होम, यू लव योर लेडी. आई मीन इज जो चीज़ हम कॉम्प्लिकेट करते हैं वो इतने सिंपली देख के वो कर लेते हैं. वो वर्चुअल वर्ल्ड आपको कॉम्प्लिकेट करता है. माँ बाप की सुनो और ये मोबाइल जी का मत सुनो, गूगल जी से मत सुनो. आप लोग एडवाइस लेना है तो चैट जीपीटी को मत ढूंढो. डेटा के लिए चैट जीपीटी ढूंढो कि कितने लोग किधर रहते हैं, क्या रहते हैं. लेकिन लाइफ लेसन्स के लिए माँ बाप है, गुरु है. एक गुरु पकड़ लो, यू नो, क्योंकि गुरु वो आंखें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा. तो ये करो आप लोग. इसलिए हमारे पूर्वज यही बोलते थे ना कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है. भगवान, क्राइस्ट, अल्लाह पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है. Because that shows you the part. All this is bullshit. Are you spiritual? I am spiritual. I have always been, because I've always been connected to my roots. कर्तम भुक्तम में मैं मानता हूँ, कर्मा है मैं मानता हूँ, धर्म है, सेवा है मैं मानता हूँ. तो I think because of all that, I've always believed in it. I'd actually want to ask you one thing because I don't know मुझे कभी मौका मिलेगा या नहीं KL राहुल से to do an interview with him. But 3 चीज़ें, he is also a boy of this generation, but I'm sure there is so much in him as a sports person जो बहुत inspiring है. 3 चीज़ें जो आपको as a person उसमें बहुत अच्छी लगी है. Focus. बचपन से I want to play for the country. Respect for any and everyone. And confidence. कि आप मुझे 1 पे खिलाओ, 5 पे खिलाओ, 9 पे खिलाओ, 10 पे खिलाओ, मैं खेलूँगा और देश के लिए खेलूँगा. मैं हार्ड वर्क, मैं 500 चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन आपने 3 कहा तो मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको बताए. और मुझे सोचना भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ. मेरे लिए इंस्पिरेशन है. यू नो, लोग कहते कि यार फादर इन लॉ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्पायर नहीं करे. मैं फादर इन लॉ बाद में बना, पहले मैं फ़ैन था ना, और आज भी फ़ैन हूँ. I love his cricket. I love the way he plays his sport. Also a good family person. जब ये सब क्वालिटीज़ है तो वो कहावत है ना कि माँ हमेशा कहती है कि बेटी को ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो उसे he will love her more than she can ever love him. That is KL Rahul. मैं अतिया को हमेशा बोलता हूँ कि you're blessed that you've got a husband like KL Rahul, and I am blessed that I got a son like him, and Ahan is blessed that he got a brother-in-law like him, and Mana a son-in-law. Absolutely. So, and I use the word blessed. I'm not choti moti word nahi. Bless is only the Lord blesses you, and this has happened through him. No, but it's lovely how like every girl sees उसके पति में अपने father को. I feel. Yeah. वो qualities कुछ तो होगा. True. I think qualities, simplicity. We are culturally very connected. We are spiritually very connected because हमारी roots वही है ना, मैंगलोर. छोटा सा गांव, मंदिर, देवी माँ, नाग देवता, हाउस ऑफ स्पिरिट्स. That's our connect. और एक ऐसी जगह से आता हूँ मैं जहाँ की मंदिर एक मुस्लिम फैमिली ने बनाई हुई है. तो हमें तो यही पता है कि इंसान है हम सब. उसके अलावा आज भी देवी माँ उनके घर जाती है, पहली पूजा देवी माँ की वहाँ होती है. तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. तो मैं हर इंसान को उतनी इज्जत और उतना ही प्यार दूंगा ना. बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग एल्स. फिशरमैन हो, क्रिश्चियंस हो, सब साथ में देवी माँ का रथ खींच कर लेके जाते हैं. Right. So that's where Rahul comes from. That's where I come from. That's my roots. No, even the fact कि इतना कुछ होने के बाद जिंदगी में you're so in touch with humility. Because मैं शायद साल में 5-10 बार वापस घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ. और मेरे इर्द गिर्द आपको कभी बॉडीगार्ड, शॉडीगार्ड कभी नहीं दिखाई देंगे. मैं अकेला जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ.
मेरा जो परशु है मेरे साथ रहता है, बाकी आई डोंट एवर हैव एनीबडी विथ मी, नो अंतराज, नथिंग, नेवर। शूटिंग पे है तो दादा लोग हैं, और दादा लोग भी है तो 35 साल से मेरे साथ है, और 100 साल के तो खुद हो चुके हो। सॉरी झूठ बोल रहा हूँ, उम्र वो नहीं, मार डालेंगे मेरे को। सो फ्रॉम day 1 और day 5 ऑफ माई जर्नी ही इज बीन विथ मी। तो वो बदलता ही नहीं है। मेरा स्टाफ हो, सब कुछ, मेरे 2-3 जन जो है मेरे साथ, आई थिंक कंबाइन, आप उनकी एज कंबाइन करोगे यानी विथ मी तो 100 साल के ऊपर। एक्चुअली परशु इज बीन विथ मी फॉर ओवर 40-45 ईयर्स। दादा को 35 साल हो गए मेरे साथ। तो मेरी टीम भी वही है, मैं भी वही, और नो बॉडीगार्ड्स। वाओ। और इमेज ही बस है ना, अन्ना, just need Anna. Brother, that's right. Yes, That's absolutely. But I lost the chain of my thought. I completely lost it because I was. But I think the entire journey is so inspiring. What do you have to say about आज की नई जनरेशन गलत क्या कर रही है? गलत कुछ नहीं कर रही है। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड से हट जाओ, आज की नई जनरेशन की ब्यूटी ये है कि वो ब्रूटली ऑनेस्ट है, और जो ब्रूटली ऑनेस्ट है वो निडर रहते हैं, और वो निडरता हर अपने ज़िंदगी के एंगल में उन्हें यूज़ करना है, यू नो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब आप इतने ऑनेस्ट हो तो आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो तो फिर क्या एंग्जाइटी, क्या चीज़ें, मेहनत, गधा मजूरी के अलावा कुछ नहीं होता। मैं वर्ड गधा मजूरी बोलता हूँ। Why so? Because you have to work hard. You may be educated at the highest level, but nothing, you cannot substitute it without hard work. But Akshay sir has also said luck is a very important factor. Luck is an important factor, but you get lucky when you keep trying. What if you don't have luck and you lose it the first time? Yeah. Try again. That's what luck is, which means continuously do things till Lady Luck says, बहुत मेहनत किया है इसने यार, इसको चलो इसका हाथ पकड़ लो। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बिलीफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो हम लोगों में थी क्योंकि हमारी स्ट्रगल थी। हम लोगों में यानी पिताजी में मेरी स्ट्रगल थी इंडस्ट्री में। एक्टर खराब है यार, पढ़ के रोना आ जाता था। अब कैसे टिके रहूँ, चल चौथे माले से जंप मारता हूँ, 5वें माले से। वो जिगर था, मुझे टिकना है, एक्शन हीरो का खिताब चाहिए, और मिला क्योंकि ये कोशिश की ना। अगर आप सोचेंगे यार 5 माले से जंप मारूंगा मर जाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स है, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एंड ये जनरेशन बहुत ऑनेस्ट है। आप बोलो इसको रिश्वत दूंगा, मैं नहीं देता, मैं क्यों, वैसा होना भी चाहिए। क्यों दूं मैं, और क्या उखाड़ लेगा कोई, जो गलत है अपने से क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं। They have to start working harder. That's about it. आपकी नो संडे वाली पॉलिसी भी आज नो वर्किंग संडे, वो भी आप इतने सालों तक यू केप्ट इट कि संडे को मैं नहीं, और सैटरडे 90% हाफ डेज, संडे नहीं। लेकिन बाकी दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। प्रोड्यूसर 9 बजे बुलाए तो 8:30 बजे पहुँच जाता हूँ। 9 o'clock रेडी है, 8 बजे पहुँचूंगा, 9 o'clock रेडी। प्रोस्थेटिक्स अगर 3 घंटे गए तो 6 बजे पहुँचूंगा, 9 o'clock रेडी, और 6 बजे ही बोलूँगा कि जाना है मेरे को, अभी काट लो। जैसे आज नमिता ने मेरे को खींच लिया, 4 बजे बोल के 6 बजा दिया, लेकिन मैं अपना काम ख़त्म करके जाऊँगा, फिर नमिता को पकड़ लूँगा। नहीं, उसके लिए मैं कहूँगी। कहाँ है नमिता? भाग गई है, था इधर ही थी, गई। अच्छा, मेरे को लगा दिखी हो। नहीं, but I think just your journey and you yourself are so inspiring. Thank you so much for having this conversation. I think I'm taking away a lot from this, and we hope to see you very soon, and all the very best for Hunter 2. That's what I need. So watch Dada and me in Hunter 2. Hi, this is Sunil Shetty. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.